अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी जुर्म की दास्तान सुनाते हैं जिसका कोई मुल्जिम नहीं है, और अगर देखा जाए तो 3 मुल्जिम हैं। होता क्या है आज की कहानी में कि एक खातून है जो शादीशुदा है, जिसके 3 से 4 बच्चे हैं, और वो अपने घर में अपने खावंद के साथ बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होती है। उसे करीबी रिश्तेदार उसकी तस्वीर को एडिट करके बरहना तस्वीरें करके वायरल कर देते हैं। मकतूला खातून इस बात को इतना दिल पे ले लेती है कि वो गंदुम में रखने वाली जहर की गोलियां निगल लेती है और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेती है। वजह क्या थी कि उसके रिश्तेदार उसकी बरहना तस्वीरें वायरल करते हैं। ये कहानी है क्या, हुआ क्या था, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। एक अनोखा वाक़या होता है कि एक खातून जो शादीशुदा है और उसके करीबी रिश्तेदार उसकी तस्वीर बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, फिर उसकी तस्वीर को एडिट करके बरहना हालत में लोड कर दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है। वो खातून इस चीज़ से तंग आकर मकतूला जो थी वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेती है। ये वाक़या हुआ किस तरह से? मकतूला की वालदा हमारे साथ है जो इस मुकदमे की मुद्दई भी हैं। FIR भी लॉन्च हुई है, साइबर क्राइम में भी ये केस चल रहा है। ये मामला है क्या, ये उनकी वालदा से सुनते हैं। अच्छा जी, दसो तुसी की होया? बेटी तुहाडी ते माशाअल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रही सी, किन्ने बच्चे सन, नाम की सी, होया की? मेरी बेटी ਦਾ ਨਾਮ ਨਬੀਲਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ठीक है। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ठीक ਗੁਜ਼ਰ है। ਗਏ ਸਨ। 4 कितनी उम्र सी बेटी दी? ਉਹਦੀ 28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा 28 साल जी, से। 28 बहुत साल छोटी उम्र में शादी हो गई ਜੀ थी। ਬਿਲਕੁਲ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਨ ਜਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਜਗਾ ਲਈ ਸੀ। ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰ ਔਰ ਜੁਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ बीच ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਜਸ਼ਾਨ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ। ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਹਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੁਲਸਰਾ ਆ, ਫਾਤਮਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਲੱਗਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਵਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਵਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਣ ਉੱਠਣ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਸਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਨਸਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੈਣ ਉੱਠਣ ਸੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਨਸਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਸਰ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸਮਝਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਕ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਦੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਡਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਡਾਲ ਕੇ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੱਲੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਭ ਮੁੰਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਰਹਿੰਦੀ? ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਮਿੰਨਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਜੀ, ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ FI ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੁਕਾਵਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ FI ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਥ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਥਾਣੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਉਹਨਾਂ ਤਾਵਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੋ ਜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, DPO ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ? DPO ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ SO ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਰ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਸਫ ਜਵੇਦ ਹੈਗਾ ਸੀ SO, ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ FI ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ? ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲੋਡ ਕਰਾਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੂਆ ਗੁਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਆਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਗਲਨੇ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨੋਟਿਸ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨੋਟਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ MN ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਲਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਡੇਟੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਡਾਟਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, FI ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ FI ਦੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰਮਨ, ਸ਼ਾਦ ਰਮਨ, ਆਬਾਦ ਰਮਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਰਫਰਾਜ਼ ਵਿਰਕ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਵਿਰਕ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ FIR ਵੀ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਸਮ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਖ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੰਜ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ। 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਜੀ। ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ। ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ FIR ਕਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਜੋਟਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੋਖੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਬੇਟੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ 2 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਰਸੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਚਾੜਾ ਅੱਛਾ। ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ 2 ਸਾਥ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਸੇ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਤਮਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਕਾਸ਼ਫ ਔਰ ਜਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਜ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ? ਗੰਦਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ? ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ? ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੌਰਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਬਲੋਚਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਮੈਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਗਾਤੇ ਮਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਤੇ ਤੇ ਬਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਵਾਈ ਸੱਟ ਲਈ ਸੂ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਲੱਗੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਾਤਮਾ ਔਰ ਅਨਸਰ ਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ਫ ਤੇ ਜਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੰਮੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ। 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਮੇਦਾ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਦੇ ਬਕੌਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰਵਰ ਚੌਧਰੀ SHO, ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਰੈਫਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਲਾਹੌਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਗਾ ਮੰਡੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ? ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਲ ਸਨ ਮਾਂ ਦੇ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਥ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੂਸਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਜ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦਵਾਈ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਔਰ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ FIR ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ FIR ਜਿਸੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਦਈ ਹੈਗੀ ਤੇ FIR ਕਟੇਜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਟਿਆ? FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। FIR ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ FIR ਹੋ ਗਈ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ
ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਦੇਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਛ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਣ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਪਾਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਏ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਫੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜੜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੜਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੇ ਦੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਦਰ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਫਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। FIR ਮੇਰੀ ਕਟੀਜ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਨਾ ਫੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ FIA ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ FIR ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ 506/20 ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਲਰ ਖਰੀਦਾ ਉਸ ਜੌਬ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ FI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਤਰਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੋਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਓ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤੇ ਲਿਜਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਮਾ ਦਾ ਦੋ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਤੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੋ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ? ਜੋ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। DSP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਸ DSP ਨੇ ਮੇਰੀ FIR ਕਟਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ SHO ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, FIA ਨੇ ਵੀ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਖਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਚਲੋ, ਯਕੀਨਨ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਜੀ, ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, FIR ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ IG ਪੰਜਾਬ ਹੈ, IG ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 101
ਪਰਚੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ 101। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਈ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਈਜੀ ਆਫਿਸ ਗਏ ਸੋ ਜੀ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1787 ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਰਹਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, 2 ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਹਨਾ 7 ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਰਹਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਡਿਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਔਲਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁਪਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਉਹ 2 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਗਾਉਂ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, FIA ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੇ? ਇੱਕ ਤੇ 506(20) ਦਾ ਪਰਚਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ FIA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਯਕੀਨਨ FIA ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕਰਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਫਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਕੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਟ ਖੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? FIA ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ यकीनन ਤੁਹਾਨੂੰ अदालत ਤੋਂ इंसाफ मिलेगा। ये थी जी वो एक माँ की फरियाद जिसने सारी कहानी सुनाई कि बेटी इनकी ये खुद लाहौर में रहने वाली है, इनकी बेटी एक हवेली लखा में उसकी शादी हो जाती है। करीबी रिश्तेदार ना जाने किस जेलसी में, किस पुरानी दुश्मनी में उस खातून की तस्वीरें बना के उसके फेस को बदल के एडिट करके कुछ ऐसी तस्वीर जो नामुनासिब हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर भी नहीं दिखा सकते, स्क्रीन पर दिखाई भी नहीं जा सकती हैं, वो तस्वीरें वायरल कर दी। और इस कदर संजीदा लिया मकतूला ने, इनकी बेटी ने, कि उसने गंदुम में रखने वाली गोलियां जो जहर वाली होती हैं, जहर होता है जिसमें, वो गोलियां खाईं और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। मरते मरते उसने अपने खावंद को फ़ोन किया और अपने खावंद को बुलाया और उसको अपने बच्चों को उसके हवाले किया, बाप के हवाले किया, अपने शोहर के हवाले किया कि इनको तुमने संभालना है, लेकिन वो ख़ुद ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेती है। बताया जाता है, माँ जी की जानिब से मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि वो लोग जो मुल्ज़मान हैं वो उनको उस पर खातून के ऊपर ऐसे जुमले, ऐसे फ़िक्रे कसते थे कि वो इतना तंग आ चुकी थी, इतना दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी कि उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। दूसरी तरफ जो ये खातून है अपनी
बेटी के लिए इंसाफ की तलाशी हैं, वो वज़ीर आला पंजाब निगरान वज़ीर आला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनसे अपील करती हैं कि उनके कई महीने गुजरने के बाद उनको इंसाफ नहीं मिला। हवेली लखा जो उकाड़े के करीब है, वो ज़िला उकाड़ा कहलाता है, वहाँ पर जाकर जो है इनको इंसाफ की तवक्को है कि सीएम पंजाब जो है इनको इंसाफ दिलाएंगे। दूसरी जानिब आईजी पंजाब जो हैं उनसे भी ये अपील करती हैं कि इनको इंसाफ मिले, कि इनकी बेटी इस दुनिया से जिन लोगों की वजह से चली गई उनको जो है वो कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। साइबर क्राइम जो है वो भी अपना काम कर रहा है। साइबर क्राइम में जो मुकदमा दर्ज हुआ उस पर भी जो है वो कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है कि लाहौर के पुलिस स्टेशन जौहर टाउन में एक मुकदमा दर्ज होता है जो 506B की दफ़ात के तहत होता है। 506B का मतलब ये है कि असला के साथ किसी को कत्ल करने की धमकियां देने की, संगीन नताइज की धमकियां देने की दफ़ात शामिल हैं। उसमें भी मुलज़मान नहीं पकड़े जाते हैं। इनको भी जान का ख़तरा है और मरने वाली इनकी बेटी के बच्चों को भी जान का ख़तरा है। इनको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? इनको तहफ़्फ़ुज़ कौन फ़राहम करेगा? सवालिया निशान है पंजाब पुलिस पर, पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो क्या जज्बात रखते हैं कि उनकी माँ इस दुनिया से कैसे चली गई, क्यों चली गई, ये सब कुछ उनसे भी पूछने की, जानने की कोशिश करते हैं। मकतूला नबीला के बच्चे जो हैं वो भी हमारे साथ हैं इस वक्त। उनसे पूछते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और क्या वजह बनी इनकी माँ की मौत की। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। आप माइक ऊपर करो। आपका नाम आयशा है? जी मेरा आप पढ़ती हो? जी मैं नहीं पढ़ती, मामा के होते हुए पढ़ती थी, अभी नहीं पढ़ती। अच्छा, आप नहीं पढ़ती हो। तो बच्चे क्या हुआ था, आपकी मामा ने क्यों ऐसे खुदकुशी कर ली? क्या हुआ था, क्या परेशानी थी उनकी? कोई आपके बाबा के साथ झगड़ा था उनका? बाबा के साथ कोई झगड़ा नहीं था। ये जो फ़ातिमा और मिराज और ये मुनव्वरा, ये तीनों सहेलियां थी। जो मुनव्वरा थी उसका वो हुसैन के साथ गलत ताल्लुकात थे, तो उसके बाद वो कहता था कि तुम नबीला से मेरी बात करवा दो। तो मेरी अम्मी मतलब कि किसी से बात नहीं करती थी, तो वो कहती थी मैंने नहीं करनी बात। तो इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तस्वीरें बना के ना तुम्हारे मियाँ को दिखा देंगे, तुम्हें तलाक दिलवा देंगे और ना इसको ना हम तुम्हें मरवाएंगे तुम्हारे मियाँ से। तो मेरी अम्मी डर के मारे वो उनसे चीज़ें ले जाते थे और कहते थे, कभी चावल ले जाते थे, कभी आटा ले जाते थे, कभी पैसे ले जाते थे, बहुत चीज़ें ले जाते। उसके बाद हुसैन के पास मेरी अम्मी का नंबर आया, तो हुसैन मेरी अम्मी को फ़ोन करता था, कहता था आज रात रुक जा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे साथ ऐसा कर दूँगा, मैं तेरे साथ ये कर दूँगा, रुक जा मैं अभी आ रहा हूँ, मैं दीवार गुजर के आ जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो मेरी अम्मी रोती थी और डरती थी। और उसके बाद मेरी अम्मी के वो ये बातें बनाते थे ना, तो और जिसने मेरी अम्मी इनकी बात नहीं मानती थी, तो ये बातें बनाते थे मेरी अम्मी को। तो मेरी अम्मी के मेरी अम्मी के हाथ इनके मैसेजेस लग गए फातिमा और मुनव्वरा के ना, मतलब कि वो हुसैन से गलत ताल्लुकात थे और गलत बातें हो रही थी। तो उन्होंने जाके ना वो फातिमा को उनके बेटों को सुना दिए कि ये देख लो, ये तो मेरी बातें बनाती हैं, मेरी तो बातें इनकी तो ये सच में हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि मेरी अम्मी का चेहरा लगा के नीचे धड़ किसी और का लगा के मेरी अम्मी की गलत तस्वीरें बना दी। उसके बाद मेरी अम्मी को वो कहते थे, हमारे घर के सामने एक नहर थी, उसके दरख्त के नीचे मेरी अम्मी चारपाई के ऊपर बैठती थी ना। तो जब ये सारे गुजरते थे, आखिर का रास्ता है, सब गुजरते थे, तो वो मेरी अम्मी पे थूकते थे, कहते थे कि तुमने हमारा क्या कर लिया, ये क्या कर लिया, हमने तो तुम्हारी इतनी गंदी तस्वीरें, हमारी तो सिर्फ बातें थी और तुम्हारी तो हमने तस्वीरें बनाई, तुम्हें इतनी शर्म हो तो तुम जहर लेकर डूब मरो। तो मेरी अम्मी जज्बात में आके ये मेरा भाई भी साथ था और ये इनको साथ लेके जा रही है बाज़ार, कोई बीज लेना था उन्होंने, तो इनको साथ लेके जा रही। तो फ़ातिमा और वो जिशान और काशिफ, वो अंसर का भाई काशिफ, वो गुज़रे हैं वहाँ से, तो इनका झगड़ा हो गया। तो वो कहते हैं तुम्हें इतनी शर्म नहीं, हमने तुम्हारी इतनी गंदी तुम्हारी तस्वीरें और हमने तुम्हें इतनी शर्म नहीं, इतनी गैरत हो तो तुम यहाँ से गोलियाँ लेके मर जाओ। उसकी वजह से मेरी अम्मी ने गंदम वाली गोलियां खा ली। अच्छा बेटा, ये बताओ कि जो आपकी मामा थी उन्होंने
ब्लैकमेल हुई वो? जी। उनको ब्लैकमेल करते थे वो, उनकी तस्वीरें बना के, गलत तस्वीरें बना के तो वो लोगों को दिखाई, उन्होंने वायरल की, तो इस वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की? जी, मेरी अम्मी को ब्लैकमेल करते थे, कहते थे अगर तुमने हमें पैसे ना दिए तब भी हम लोगों को दिखाएंगे। मेरी अम्मी के पैसे देने के बावजूद भी वो जो गांव वाले लोग थे उनको दिखाते थे तस्वीरें कि ये देखो। अच्छा, तो ये बात तुम्हारी अम्मी ने अब तुम्हारे अब्बू को नहीं बताई? तुम्हारे अब्बू ने उनको मेरी अम्मी डरती रही कि ताकि मुझे कुछ कहे ना या मारे ना, मेरी अम्मी डरती रही। मेरी अम्मी ने इसीलिए मेरे अब्बू को नहीं बताया। तो जब ये तस्वीरें सामने आई तो मेरे अब्बू को भी पता चल चुका था कि ये तस्वीरें असल में नहीं है, ये तस्वीरें गलत हैं। ठीक है, तो आप ये बताओ कि आपको इंसाफ नहीं मिला, उनके ऊपर जो है वो आपकी जानिब से, आपकी नानों की तरफ से जो FIR हुई तो वो पकड़े गए मुलज़म, फिर पुलिस ने उनको छोड़ दिया। क्या लगता है आपको कि किस वजह से आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा? इंसाफ मेरी वज़ीर आला से अपील है कि हमें इंसाफ मिला जाए। हमें इंसाफ अभी तक 1 साल हो गया है, मेरी मामा को उनकी डेथ हुए अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। अगर उनमें मेरी तो यही अपील होगी कि हम वज़ीर आला के आगे कि हमें इंसाफ मिला जाए और हमारी मदद की जाए। ठीक है बेटा, आपका क्या नाम है? बिलाल। बिलाल, आप जब आपकी अम्मी ने वो जहर वाली गोलियां, जहर खाया तो आप साथ थे, क्या हुआ था? मेरी मम्मा इधर से कहकर गई थी मेरे पापा को हम बाज़ार जा रहे हैं, तो हम जब बाज़ार जा रहे थे आगे से आ रहे थे गंदम लेकर, तो आगे से फातिमा, जिशान और अंसर का भाई हाँ, फिर क्या हुआ? काशफ, तो उन्होंने हमारा झगड़ा हो गया उनके साथ। तो वो आगे से फातिमा कहती तुम्हारे में इतनी गैरत हो डूब मरो, तुम्हारे में इतनी गैरत हो डूब मरो गोलियां खाकर। अच्छा, ये किसने कहा था? ये फातिमा ने कहा था। तो आप साथ थे अपनी मामा के? जी। अच्छा, तो आपकी मामा ने फिर क्या किया? गोलियां खा ली? तो जी, फिर तो क्या हुआ जब उन्होंने गोलियां खाई? तो फिर क्या हुआ था? तो फिर वो पहले जब हम आ रहे थे तो मेरे बाबा को मेरी मामा ने फ़ोन किया था। क्या कहा फ़ोन करके? तो उसने कहा एक बार इधर सलीम डॉक्टर की दुकान के पास आओ। तो मेरे बाबा ने क्या हुआ मसला कोई है? तो आगे से फ़ोन काट गई। तो वो जब मेरा बाबा आया तो वो क्या कर रही थी, तो मेरे बाबा ने रिश्के में डाला, ऑर्डर रिश्के में, तो फिर रह गया अस्पताल। उन्होंने मैदा वॉश किया और वो फिर उन्होंने कहा लाहौर ले जाओ अस्पताल। अच्छा, मामा अच्छी थी? जी। प्यार करती थी आपसे? जी। मिस करते हो? जी। याद आती है? जी। छोटा भाई कितना छोटा है? सबसे छोटा भाई कितनी उम्र है उसकी? 6 साल। 6 साल का। आप कितने साल के? 10 साल का। 10 साल के। कितने बहन भाई हो? 4। 3 भाई हो? जी। 1 बहन है? जी। ज़ैन अली कुरैशी साहब हैं जी, बड़े माहिर कानून हैं, एडवोकेट हैं, और इस खातून के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई उसको इंसाफ दिलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं अदालत के ज़रिए। ज़ैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैन साहब, हम तो सिर्फ सुना करते थे कहानियों में कि किसी ने अपनी इज़्ज़त की खातिर जो है अपनी जान दे दी, और जो मकतूला है खातून उसने बिल्कुल वैसे ही किया कि उसके साथ ज़्यादती हुई, उसकी तस्वीरें जो हैं वो अपलोड की गई और वो दिल बर्दाश्त हुई और उसने अपनी जान दे दी। इसकी कहानी है क्या? कानूनी पहलू हैं क्या? आप साइबर क्राइम को भी देखते हैं, उसकी भी आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं। साइबर में केस चल रहा है या फौजदारी केस चल रहा है? किस तरह के केस चल रहे हैं? देखिए मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं ये बताता चलूँ कि नॉर्मली जो साइबर क्राइम से रिलेटेड मामलात होते हैं जिसमें आम तौर पे जहाँ पे किसी खातून की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, उसमें कुछ बुनियादी वजूहात होती हैं। हम अगर मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जहाँ पे आम तौर पे बाज़ औक़ात लोग रिलेशनशिप में तस्वीरें तैयार कर लेते हैं। बाज़ औक़ात किसी के पास किसी की तस्वीर चली जाती है। बाज़ औक़ात हमने ऐसे केसेस भी देखे जहाँ पे एक्स हस्बैंड ने एक्स वाइफ की कोई तस्वीर शेयर कर दी। लेकिन ये जो केस है ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये केस डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे केसेस आपको सोसाइटी में बहुत कम देखने को मिलेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जो विक्टिम खातून है उसकी तस्वीर जो थी वो एडिट करके तैयार की गई।
उसका चेहरा लिया गया और उसको उसके बाद किसी ऐसी चीज़ या ऐसी उसको सुपर इम्पोज कर दिया गया किसी नाजेबा तस्वीर के साथ, ठीक है। और उसके बाद उस तस्वीर को वायरल कर दिया गया। अब इस केस के अंदर हुआ ये है कि खातून की जो तस्वीरें थी जब वो वायरल हुई हैं तो उसके बाद उस खातून ने हरासमेंट का सामना करते हुए उसके बाद जो उसको डेफेमेशन देखनी पड़ी, उसके बाद उस खातून ने खुदकुशी कमिट कर ली। अब ये जो सारा मामला है इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि ये नॉर्मल केसेस से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मल केसेस में जैसे मैंने आपको बताई कि आमतौर पे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो उसके फैक्ट्स होते हैं, वो बड़े आमतौर पे सेम होते हैं। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट इस तरीके से है कि यहाँ पे खातून का जो चेहरा था वो इस्तेमाल किया गया, लगाया गया उसको बदनाम करने के लिए, और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। अब इसमें कानून की तरफ आ जाते हैं। कानून जो है वो ऐसे केसेस के अंदर जो अहम सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन 21, ठीक, जिसमें जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का है, जिसमें बात की गई है कि अगर कोई शख्स किसी खातून की या किसी भी शख्स की जो है वो तस्वीर को एडिट करके तैयार कर लेता है और नाजेबा तस्वीर तैयार कर लेता है और उसके बाद जो है वो उसको वायरल करता है, उसको पब्लिकली एग्जिबिट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रांसमिट करता है, तो उसकी जो सज़ा कानून में है वो 5 साल है। ठीक है, ठीक। तो इसमें जो ये केस है इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो खातून की ना सिर्फ तस्वीरें तैयार की गई हैं बल्कि उन तस्वीरों को वायरल किया गया है। ठीक है। और उसके बाद वायरल करने के बाद जो उसके बाद के जो हालात हैं वो जैसे मैंने आपको बताया कि खातून जो थी उसने जो है वो खुदकुशी उसने कर ली। और एक हमें इस चीज़ में मैं समझता हूँ कि बड़ी एक अहम चीज़ है कि आम तौर पे चूँकि मैं बहुत अरसे से ऐसे केसेस को बतौर वकील में ऐसे केसेस में पेश भी हो रहा हूँ, नॉर्मली ऐसे केसेस के अंदर जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स के जो स्पेशली सुपीरियर कोर्ट्स के जो व्यूज़ हैं डिफरेंट मुख्तलिफ केसेस के अंदर, वो बड़े हमने देखा कि उसमें बड़े सख्त फैसले जो हैं वो ऐसे केसेस में पाए गए हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में देखा ये गया है कि जो शख्स जुर्म करता है कहीं ना कहीं जो है वो सोसाइटी एट लार्ज को भी इफेक्ट कर जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ैन साहब, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि देखें जो मकतूला है, जो खातून है, उसकी तस्वीरें एडिट करके अपलोड की जाती हैं और ऐसी तस्वीरें जो काबिल एतराज़ जिनको कहा जाता है, वजह उसकी मरने की यही बनी, चाहे वो उसने खुद सुसाइड की या उसको किसी ने मारा। यकीनन ये तो इन्वेस्टिगेट होगी, चीज़ें फिर सामने आएंगी, लेकिन अब तक यही पता चलता है, घर वाले भी उसके ये कहते हैं कि उसने सुसाइड की। तो जो आप बता रहे हैं कि FIA में क्या कोई ऐसा कानून है, FIA में जो FIR होती है, क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल की जा सकती है कानून के मुताबिक कि एक खातून की बरहना तस्वीरें बनाई जाती हैं, एडिट की जाती हैं और वो ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेती है, तो क्या 302 में हम जा सकते हैं? देखिए, अब इसमें गुजारिश ये है कि आम इनकी ऑलरेडी कुछ पुलिस में इस हवाले से एक FIR भी इनकी मौजूद है, चूँकि वहाँ भी ये मामला रिपोर्ट किया गया था। अब देखें, यहाँ पे ये है कि जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का सेक्शन 28 है, वहाँ पे बड़ा कैटेगोरिकली बताया गया है कि जहाँ पे पाकिस्तान पीनल कोड के जो ऑफेंसेस हैं जो कि नॉट इनकंसिस्टेंट विद द साइबर लॉज हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर एक शख्स है उसको साइबर स्टॉकिंग का सामना है, सेक्शन 24 है, उसके साथ साथ उसको क्रिमिनल इंटीमिडेशन का भी सामना है, तो सेक्शन 506 जो है वो इस्तेमाल कर सकती है FIA। इसी तरीके से अगर एक शख्स है उसके साथ फ्रॉड कमिट हो गया है, अब फ्रॉड की डेफिनेशन जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद है। अब 420 के हवाले से अगर हम देखते हैं तो उसके साथ साथ जो यहाँ पे सेक्शन 14 है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो दिए गए ऑफेंसेस हैं वहाँ पे उनका इस्तेमाल आमतौर पे साइबर क्राइम के केसेस में इसलिए भी ज़्यादा देखा गया है क्योंकि साइबर क्राइम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ऑफेंसेस जो कि कॉग्निजेबल हैं और जो कि नॉन बेलेबल हैं वो टोटल 3 हैं, जिसमें एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी आती है, जिसमें एक सेक्शन 21 जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं वो आता है, उसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी आती है। तो सेक्शन 28 जो है वो ये इट क्लियरली सेज दैट कि जहाँ पे कोई ऑफेंस ऐसा है जो पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद है, जो कि साइबर लॉज में मौजूद है, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि जहाँ पे उनको इनकंसिस्टेंसी का इशू नहीं होगा वहाँ पे वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो दूसरी इसकी FIRs हुई हैं वहाँ पे हवेली लखा में ये वाक़या पेश आता है, तो उसमें भी मुल्ज़मान की ज़मानत हो जाती है और अब वो बिल्कुल बाहर हैं,
क्या इसकी लीगल पोजीशन क्या है इस केस की कि ये वो जुल्म है जिसके लिए उसकी माँ लड़ रही है, उसकी माँ इंसाफ दिलाना चाहती है, आपके ज़रिए आप भी उसकी मदद कर रहे हैं, अब होगा क्या, इसमें कानून क्या कहता है? देखिए मुझे साहब, मैं सिर्फ जो अभी तक इनका मुकदमा जो कि साइबर क्राइम से मुतल्लिक़ है, मैं तो उसमें अभी बतौर वकील मैं पेश हो रहा हूँ। ठीक है। जो इनके पुलिस के मुकदमा आते हैं वो और लॉयर्स हैं जिनके पास हैं, वो जो देख रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो साइबर क्राइम रिलेटेड केसेस होते हैं ये आम तौर पे इसमें टेक्निकल एविडेंस होता है। ठीक है। आम तौर पे नहीं बल्कि हर केस में टेक्निकल एविडेंस होता है। मिसाल के तौर पे इसमें अगर किसी शख्स का मोबाइल इन्वॉल्व होगा तो उसका IMEI corroborate करेगा कि ये शख्स किस शख्स का मोबाइल फ़ोन था, कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, कितनी सिमें इसमें इस्तेमाल हुई। अब जब सिमों की डिटेल आ जाएगी IMEI के थ्रू, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो किसकी ओनरशिप में थी, किसका किससे राब्ता था, किसके मोबाइल फ़ोन में कौन सा मैसेज गया, किसके मोबाइल फ़ोन से कौन सी तस्वीर गई। ये तमाम फोरेंसिक एनालिसिस की चीज़ें जो हैं FIA एट द इंक्वायरी स्टेज या एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है। ठीक है। अब ऐसे केसेस के अंदर आम तौर पे चूंकि एविडेंस जो होता है वो बड़ा मजबूत होता है, वो जो टेक्निकल एविडेंस होता है वो सारे का सारा जो है वो डिजिटल मीडिया से एक्वायर किया गया होता है, और डिजिटल मीडिया को भी प्रॉपर तरीके से चूंकि प्रोसेस में से गुजारा गया होता है, तो उसमें आम तौर पे ऐसे केसेस के अंदर देखा गया है कि ऑल दो कन्विक्शन कम है, लेकिन जो कन्विक्शन रेट जो अदालतें जो हैं जो फैसला करती हैं उसमें आमतौर पर सज़ाएं ज़्यादा देखी गई हैं। कन्विक्शन कम होने की जो वजूहत हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट भी हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं वो अपने केसेस की पैरवी नहीं करते। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉपर फॉलो अप ना करने की वजह से भी हमने देखा कि अदालतों में ऐसे मसाइल आ जाते हैं। बट जहाँ पे ऐसे केसेस को प्रॉपरली फॉलो किया गया है, प्रॉपर उनके अंदर असिस्टेंस प्रोवाइड हुई है, वहाँ पे हमने ये देखा है कि आम तौर पे अदालतों ने भी उनके अंदर फैसले जो हैं वो सुनाए हैं और वहाँ पे लोगों को सज़ाएं भी हुई हैं। ठीक है। अच्छा जैन साहब, यकीनन इसमें कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जो एविडेंस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर कानून के मुताबिक करना है। FIA जो एक इदारा है जो लोगों को साइबर क्राइम करने वालों को जो है सज़ा देते हैं, आप ये बताइए कि FIA इस केस में कितना मददगार है? देखिए मैं इसमें गुजारिश ये करना चाहूँगा मुजाहिद साहब कि हर एक केस जो भी FIA में जाता है उसमें उसके अपने कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस, उसके अपने कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिनमें मिसाल के तौर पे जो क्रिमिनल होता है वो सामने नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है। आपने उसको ट्रेस करना होता है और उसमें आप जैसे कानून में अगर मैं उसकी बात करूं तो दैट इज़ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अ क्राइम सीन। आप मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, डॉट्स को जोड़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप उस शख्स तक पहुंचते हैं जिसने क्राइम कमिट किया होता है। देखें साइबर क्राइम के अंदर जो एक उसकी खसूसियत है जो उसको दूसरे क्राइम से जो है डिस्टिंग्विश करती है, दैट इज़ इसमें क्रिमिनल छुपा होता है, वो नज़र नहीं आ रहा होता, वो अपना काम छुप के कर रहा होता है। जेली नंबर इस्तेमाल करेगा, जेली आइडेंटिटी इस्तेमाल करेगा और वहाँ से वो अपना क्राइम कमिट करता है। आम तौर पे जो केसेस होते हैं, जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग इदारों के पास जाते हैं, अभी तक जो बीइंग लॉयर मेरा जो केसेस के हवाले से तजर्बा रहा है, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि आम तौर पे ऐसे केसेस के अंदर जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया गया होता है और उसके बाद इनके अंदर हमने फिर देखते हैं कि इनमें लोगों को भी पकड़ा जाता है, लोग पकड़े भी जाते हैं। देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है ना, FIR के बाद भी एक प्रोसीजर है। जब तक आप उस प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, आप अदालत में जो है वो ट्रायल के अंदर पेश नहीं होते, आप कोई प्रोसीजर प्रॉपर नहीं पता होगा, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक, हम अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें ना, तो उसमें सिर्फ एक इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, उसमें एक विक्टिम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें जुडिशरी का भी एक अहम रोल है। तो मैं समझता हूँ अगर कलेक्टिवली अगर इसको देखा जाए, अगर सब अच्छी जगह अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट्स बेहतर आने की तवक्को है। अब जहाँ तक बात है कि आम तौर पे ऐसे केसेस में ये देखा गया कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। आम तौर पे जो विक्टिम्स होते हैं उनको उनके जो ऐसे मसाइल होते हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाता है। लेकिन मैं एक देखने वालों को जो आम तौर पे जैसे इस केस के अंदर जो है वो जो विक्टिम हैं वो अपने केस को परसू कर रहे हैं, अपने केस को देख रहे हैं, मैं देखने वालों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि केसेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं उनको ये कहूँगा कि कभी भी किसी से ब्लैकमेल मत हो, फौरी रिपोर्ट करें। FIRs बिल्कुल होती हैं, आप जब आके रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप जाके अपने केस को परसू नहीं करेंगे, तो अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है जैन साहब, इस पे मैं आपकी राय बिल्कुल लूँगा। मुझे ये बताइएगा कि इस केस में बड़ी आसानी सी है
क्योंकि आपने खुद बताया कि वो तस्वीरें जो एडिट की गई जी तो सिर्फ सिंपल एफआईए ने इसकी तस्दीक करनी है कि क्या वो तस्वीरें एडिट हुई जी। तो उसके बाद मुलजमान को पकड़ा जा सकता है, जो कानून के मुताबिक सज़ा मिलती है उनको मिल सकती है। तो इसमें इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? देखिए इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस ये हैं कि अभी ऑब्वियसली जब एक बेल स्टेज पहले चल रही थी केसेस के अंदर जहाँ पे मुलजमान ने अपनी बेल अप्लाई की हुई थी, बेल अभी डिसाइड हुई है, उसके बाद अब आगे जो है मामला चले जाएंगे ट्रायल कोर्ट की तरफ। ठीक है। ट्रायल कोर्ट के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि ट्रायल कोर्ट का थोड़ा प्रोसीजर लेंथी है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो आपका जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग कि अगर हम देखें तो ट्रायल कोर्ट में भी अगर आप अपने केस को परसू करते रहें, अगर आप अपने केसेस को जो है वो उसके अंदर आप दिलचस्पी रखें तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। ऐसे केसेस के अंदर चूंकि मैंने तो बीइंग लॉयर मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आए जहाँ पे लोगों ने जब अपने केस को फॉलो किया, प्रॉपर उनके पास असिस्टेंस मौजूद थी, लॉयर्स की उनके पास एक अच्छी टीम मौजूद थी जो उनको गाइड करती थी, कोर्ट्स में अपीयर होती थी। तो ऐसे केसेस के अंदर जो सेक्शन 21 से रिलेटेड है वहाँ पे कोर्ट्स में मैंने जैसे आपको बताया बड़ी सख्त सज़ाएं भी सुनाई गई हैं। ठीक है। और जहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे केसेस के अंदर ऑल्दो कि सज़ाएं बहुत कम हैं, 5 years इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट, बट अगर हम सुपीरियर कोर्ट्स के फैसलों को पढ़ते हैं, हम अदालतों के फैसलों को देखते हैं, वहाँ से सख्त सज़ाएं सुनाई गई हैं और ऐसे लोग बिल्कुल पकड़े जाते हैं। ये एफआईए ने बहुत सारे ऐसे जो केसेस के अंदर लोग थे उनको गिरफ्तार किया, उनके मुकदमात अदालतों में आए। अब देखें जब अदालत में मुकदमा आ जाता है उसके बाद जो फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट आ जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एविडेंस को अप्रिशिएट किया जाता है, वहाँ पे एविडेंस को देखा जाता है, वहाँ पे बयानात को देखा जाता है, वहाँ पे मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिनके बाद अदालत ने फैसला सुनाना होता है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ चेंजेस आ रही हैं, वक्त के साथ साथ अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने के साथ साथ ऑल्दो हमें नए लॉज की भी ज़रूरत है, हमें इन लॉज को भी सख्त करने की ज़रूरत है, मज़ीद सज़ाएँ बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि कुछ जो लोग हैं वो अपने आप को मज़ीद सेफ फील करें। हमें सिस्टम में भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है, हमें और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं टेक्नोलॉजी के चेंज होने के साथ साथ मेरा ये एक कानून का तालिब इल्म होने के हवाले से मैं समझता हूँ कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इन कवानीन में भी तब्दीली जो है वो हर 3 साल के बाद ज़रूरी हो चुकी है। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है हमें उस तरीके से ये देखना चाहिए कि साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके ऑप्ट करते हैं ऐसे केसेस के अंदर अपनी या डिफरेंट केसेस के अंदर अपनी स्ट्रैटेजीज़ को लेके जाने के लिए। तो वहाँ पे कानून साथ साथ अपडेट होता रहेगा तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ कि चल सकती हैं। ठीक है ज़ैन साहब, एक हमारे देखने वालों के लिए और मेरे लिए एक ये इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि जैसे इस खातून ने दिल बर्दाश्ता हो गए कि उसकी तस्वीरें ऐसी बनी और उन तस्वीर से परेशान होकर उसने ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। बहुत सारी ख़वातीन हमारी सोसाइटी में ऐसी होंगी या ऐसी हैं जिनके साथ ऐसे वाक़यात होते हैं और अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए वो एफआईए के पास नहीं आती हैं या किसी भी ऐसे इदारे के पास नहीं जाती हैं। तो क्या करना चाहिए एज ए लॉयर? आप क्या समझते हैं कि उनको कौन सा तरीका अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, एक तो मैं हर खातून को, हर विक्टिम को ये कहूँगा कि अगर आपके साथ कोई शख्स भी ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल भी ब्लैकमेल ना हो। जब आप किसी ब्लैकमेलर की बात मानते जाते हैं, मैं अब इस केस से हट के एक बात कर रहा हूँ कि एक मेरा एक पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जिनके साथ भी कभी कोई ऐसा काम हो रहा है या हो चुका है या आगे उनको ख़तरा है कि कोई शख्स कर सकता है, कभी भी विक्टिमाइज ना हो, उस शख्स को पैसे मत भेजें, उस शख्स की ब्लैकमेलिंग में ना आएँ, फौरी तौर पे उसको जो भी आपका मुतलका करीबी एफआईए साइबर क्राइम सर्कल है वहाँ पे रिपोर्ट करें। सबसे अहम बात यह है कि मैं जो आज की एक इस वीडियो में मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारे आजकल के यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो ऐसी तस्वीरें मत तैयार करें, ना किसी को भेजें। और अगर किसी जगह पे उनको ये फील होता है कि किसी ने कोई ऐसी तस्वीर उनकी एडिट करके तैयार कर ली है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को जो है वो कॉन्फिडेंस में लें, अपने वालिदैन को बताएं कि जी इस तरह हमारी तस्वीर किसी ने तैयार की हुई है और वो आगे इसको वायरल करना चाहता है। या अगर वो वायरल भी कर दे फिर भी आप उस मुकदमे को रिपोर्ट करें। उसको ये मत समझें कि जी हम इस बात को अगर आगे लेके चलेंगे तो इसमें कोई हमारी बदनामी होगी। जो शख्स किसी के साथ ऐसा कर रहा है वो कल को जाके किसी और के साथ ऐसा करेगा। जब तक आप उसका कानूनी तौर पे हल तलाश नहीं करेंगे, कानून की मदद नहीं लेंगे, तब तक ये सिलसिलेकार नहीं रुकता। और आमतौर पर ये देखा गया है, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं वो
काफ़ी सालों से विक्टिमाइज हो रहे होते हैं, वो बोल ही नहीं रहे होते, और एंड पे आके जब उनको पता चलता है कि अब उनकी जो हिम्मत है या बर्दाश्त है वो जवाब दे गई है, तो फिर वो उठते हैं और वो उसके खिलाफ कार्रवाई का सोचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज भी मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो इस मुश्किल में हैं कि उनको क्या करना चाहिए, जो इस सोच में हैं कि वो आगे क्या कर सकते हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि ब्लैकमेल मत हों, कभी किसी ऐसे शख्स को पैसे मत दें। जब भी आप उनको पैसे शेयर करेंगे वो मज़ीद आपके ऊपर जो है वो हमला करेंगे या वो मज़ीद आपको ब्लैकमेल करेंगे, उसी वक्त उस शख्स को आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके एविडेंसेस भी डिलीट ना करें। जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो कॉल्स आ रही हैं, उनको सेव रखें। अगर मैसेजेस आपको भेज रहा है कोई ईमेल्स भेज रहा है, उसको डिलीट मत करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो खौफ में आ जाते हैं, वो डिलीट कर देते हैं। डिलीट मत करें, एविडेंस सेव रखें। अगर वो शख्स के पास से वो एविडेंस नहीं भी बरामद होते, आपके फ़ोन से वो एविडेंसेस जो हैं वो corroborate कर सकते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं। तो रिकॉर्ड सेव रखें, खौफ मत खाएं, और अपने पेरेंट्स को अगर आप कॉन्फिडेंस में ले लें तो ये सबसे अच्छी बात है। मैंने ये देखा है सर कि वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ सिंसियर होते हैं। उनकी कोशिश होती है अगर उनका बच्चा किसी ऐसे मसले में फंस गया जहाँ पे उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सिंसियरिटी के साथ अपने बच्चे को वो जो है वो मैसेज या उसको वो एडवाइस देते हैं जो कि उनको कोई और शख्स नहीं दे सकता। तो आमतौर पे बच्चे सबसे ज़्यादा वालिदैन से घबरा जाते हैं। अगर वालिद या वालिदा को ये बात पता लग गई तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, आप उनको कॉन्फिडेंस मिलें, वो आपके वालिदैन हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, वो आपके साथ चलेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन इसमें ज़रूरी बात सिर्फ इतनी है सर, इस फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो भी ठीक तरीके से होना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि अगर वो किसी को तस्वीर ऐसी भेज देंगे या ब्लैकमेल कर लेंगे, ये कानून बहुत सख्त है, इसमें इस कानून को पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ क्योंकि अवेयरनेस सोसाइटी में उस तरीके से नहीं आई, तो हम ये देखते हैं कि इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक खातून ब्लैकमेलिंग होने के खौफ से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेती है। लेकिन देखने वालों के लिए ये एक सबक है कि ऐसी ख़वातीन अगर उनको कोई ब्लैकमेल करे या इस तरह की बरहना तस्वीरें बनाकर वायरल करे, तो हमारे मुल्क में हमारे इदारों के पास कानून मौजूद हैं, साइबर क्राइम है, पुलिस है। अगर कुछ ऐसा होता है तो कानून के मुताबिक इदारे उसे मुलजिम को सज़ा दिलवा सकते हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।